Hello friends, Devendra Kumar here with a very crucial and critical topic today with you. Friends, the topic I am going to discuss with you or share with you is not an important topic for the children but for every age person. So, what is the topic? I have the topic to share with you love. Love, what a lovely word, what a meaningful word, what a useful word, but has lost its charm, has lost its value, has turned the totally definition of its reality. Friends, I get a number of time queries through my children, my students, and my friends also. What is love? In fact, love is not an attraction. Some people say, how can we identify the difference between attraction and love? Love और attraction में अंतर क्या है? The very simple thing to understand the difference between both. Attraction, suppose you have occupied the stomach whatever you wanted to, the delicious food, and you have filled it. आपने पेट भर के खाना खा लिया और वो भी अपनी पसंद की चीज़ों का खाना खाया. Do you get attracted toward the cheese, toward the other delicious food? Not at all. Same way, if you have all the family members and you care for them, then you find no place for any outsider. It means you are not getting attracted. It is the very sensitive thing to understand, especially among the teenagers. Teenagers generally are found indulged in this dilemma that they have fallen in love. टीनेजर्स को तो बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि वो ये सोचते हैं कि उन्हें प्यार हो गया. फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट आई वांट टू टेल यू, लव only can do a mother. A number of time, a thousand not but innumerable of time you find that mother gets ready to sacrifice everything. I don't mean to that one mother which you very shortly learned through the Bhopal, that one of the lady at the 57 years went to one of her junior officer and requested his wife to give her husband to her. ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है. बच्चों, एक सिंपल सी बात, आप इस लायक, इस एज तक, टीनेज तक किसने पहुंचाए? पेरेंट्स ने. क्या एक्सपेक्टेशंस रखी उन्होंने कि आप उनके नाम को कलंकित करें? कैसे कलंकित? आप तो मैं कहता हूं प्रेम पवित्र है, फिर कलंकित कैसे कर रहा है प्रेम? अगर आपने अपने पेरेंट्स के टेंशन का कारण अपने आप को बनाया, उनके स्ट्रेस का रीज़न आपने अपने आप को बनाया, स्ट्रेस इन एनी सेंस, आई डोंट मीन टू द टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी है, बट आपके पेरेंट्स जो आपकी भूख का भी ध्यान रखते थे, आपके चलते टाइम कितनी थकान हुई होगी, सारी बातें ध्यान रखते हैं. आपकी माँ जो ये भी फील करती थी कि आपका बिस्तर गीला हो गया है, आपको सूखे में सुलाने की कोशिश करती थी, चाहे उसे अपने कपड़ों को अपने ऊपर आपको सुलाना पड़ा हो. क्या आपने कभी अपेक्षा की है, कभी ध्यान दिया है कि क्या वो माँ उस बात को एक्सेप्ट कर रही है जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि यू लव हर, यू लव हिम? इफ नो, इट मीन्स ईदर यू आर चीटिंग टू योर मॉम, योर डैड, और दे डिसीव्ड यू, दे कुड नॉट मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड यू. ऐसी स्थिति में अगर आपके माँ बाप ने अपना त्याग आपको एहसास ही नहीं होने दिया और आप उस त्याग को भुला रहे हैं, तो ये पेरेंट्स की गलती है क्या? मे बी यू कैन ब्लेम योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो ब्लेम देम. एज द एज ऑफ आवर चिल्ड्रन चेंजेस, वी मस्ट हैव टू बी केयरफुल फॉर देयर चेंजेस. हर हालात में उनको तरफ ध्यान देना चाहिए. टीन एज, a student of 9th standard, 10th standard, 12th standard, or college going, offers to anti-gender that he or she loves to one another. Do they remember what the parents had the expectation?
what they have the plan. I don't mean to the dowry. मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आपकी मम्मा आपके पापा आपके प्रति शादी में दहेज लेकर अपने आप को रईस बनाना चाहते हैं तो आप, बट check, are you attract or really fall in love? In Western culture, it is very common that under 18, most of the girls are get the relationship, but Indian culture or scriptures are so holy, teach us every day value of love. The foremost love on the earth, in according to our Hindu scriptures, has been called the love of parents and love to parents. अब कैसे, उसे क्या नाम देंगे आप? दैट इज ओनली अट्रैक्शन. कैसे कह सकते हैं आप अट्रैक्शन? मैंने एग्जाम्पल दिया आपको. अगर आपने अपनी फिजिकल नीड्स को या तो कंट्रोल कर रखा है या पूरा कर लिया, आफ्टर दैट यू फाइंड इन द रिलेशनशिप, you find fall towards the someone, then you can think, but it doesn't happen in this age, especially in the teenage, because you are hungry, you are thirsty, just you are attracted, but that attraction cannot be given the name of love. It is the sin, it is just the blame, it is the allegation, stigma on the name of love. ये प्रेम के नाम पर सीधा सा एक साधारण नहीं बल्कि एक बड़ा असाधारण कलंक है जिसे वॉश ऑफ भी नहीं किया जा सकता, धोया नहीं जा सकता. प्रेम पूजा है. पूजा लड़की का नाम नहीं है. प्रेम तपस्या है. प्रेम प्रश्न नहीं है, प्रेम उत्तर है, हर चीज़ का उत्तर है. अगर मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ और मेरी बीवी मेरे साथ झगड़ा करती है, शी कंपेल्ड मी सपोज for the suicide, but I don't have any change in my feelings, I am constant to care for my children, it is love. If getting the sore words, bitter most words from my wife's side, still I care for her, I look after her, I fulfill her needs, it means it is love. But it doesn't find in the teenagers. आपने अपने फ्रेंड को बर्थडे विश नहीं किया, लेट कर दिया, इतना बड़ा मुंह बन जाता है. इज इट लव? नॉट एट ऑल. इट्स नॉट ए लव. माई डियर फ्रेंड्स, रियली लव इज नॉट ए नीड, इट इज ऑलवेज गिवर, इट इज ऑलवेज डोनर. प्रेम आवश्यकता नहीं है, प्रेम आविष्कार भी नहीं है. प्रेम प्रकृति है, हमेशा देने का काम करती है. प्रेम क्वेश्चन नहीं है. कैसे नहीं है? मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, राणा सांगा ने जहर भेज दिया. शी didn't raise the question, she didn't even try to taste, though she knew very well that he was her worst enemy. My dear children or my dear friends, प्रेम तो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है. Modern science even accepts it that there is a bridge over the sea. आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि समुद्र पर कभी पुल बंधा. That was love. Ram didn't get excited and search just like the mad and reached direct. No, he had the patience, he had the idea, he had the faith in her, in his love. उसे पूरा विश्वास था अपने प्रेम पर. सीता को पूरा विश्वास था. 6 महीने के इंतजार के बाद उसने रावण को स्वीकार नहीं कर लिया था. उसे पता थी राम जरूर आएगा. माय डियर चिल्ड्रन, आज जिस अट्रैक्शन को आप प्यार का नाम देते हैं, ये सीधा कलंक है. कैसे कलंक है? आप कभी भी आजमा सकते हैं, कभी ट्राई कर सकते हैं. अगर आपने अपनी अपीयरेंस को ध्यान नहीं दिया, आपका लवर आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, आपको इंट्रोडक्शन भी नहीं कराता, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे ट्रू नहीं है, दे डोंट केयर. इफ दे केयर यू कैन फील, बट मे बी दे प्रिटेंड इट. हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो ढोंग कर रहे हो, बट इफ यू आर परमानेंटली सो, स्टिल समटाइम वन ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव कि एक
conductor, one-eyed conductor in green lines in Delhi roadways, Delhi buses, had a very beautiful wife, and she loved him to marry, but she treated him just like a slave. What is it? Is it love? No, it is just a use. It is just a use, nothing more than that. Then why do you blame the love? मेरी माँ मुझे प्यार करती है, मेरी माँ से मैं प्यार करता हूँ, तो मैं उसकी परवाह करता हूँ. If we say that I have love in intercaste, suppose ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं इंटरकास्ट की लड़की से या लड़के से प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स इस बात को लाइक नहीं करते, तो या तो मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया, या मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता. प्यार वास्तव में पर आपस का लेन देन भी नहीं है. मैं नहीं कहता कि अगर मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ तो वो भी मुझे प्यार करेंगे. अगर वो मुझे प्यार नहीं करते और फिर भी मैं प्यार करता हूँ, ये प्यार है. क्योंकि आपस में म्यूचुअल एक्सचेंजिंग इज ए प्रोफेशन, इज ए ट्रेड. इट इज नॉट अ लव. Number of times you find your great grandparents, your grandparents, your parents don't show you if they love or no, but they do all the things for your favor. प्रेम एक तपस्या है, एक साधना है. किस तरह की तपस्या? If you are in physical need, if you are in emotional need, you need a companion to compensate you. आप फ्रस्ट्रेट है, आप डिप्रेस है, आप हाइपर है, ऐसे में आपका कोई साथी आपको सांत्वना देता है, सहानुभूति देता है. सहानुभूति और सांत्वना प्रेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्रेम है वो आपको परेशान ही नहीं होने देता, वो आपको अपसेट ही नहीं होने देता. टीनेजर्स हैविंग ए वेरी स्पेशल क्वेश्चन कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट इट इज लव और नो. The very simple formula to check themselves if it is love or no, one more formula, that they should ask them first if they are true to their parents. If they are not true to their parents, then how they can expect somebody will be true to them. अब बात आती है मैरिज की. कई बार नहीं, हमेशा जनरली वी गेट मैरी टू अ स्ट्रेंजर. हम अजनबी से शादी करते हैं. अजनबी से शादी करने के बाद प्रेम कैसे हो सकता है? हिंदी मूवीज में कई बार दिखाई जाता है, हाउ कैन बी लव इन ए स्ट्रेंजर. माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम को ये कहता हो कि हो जाता है, वो अट्रैक्शन होता है जो हो जाता है. जो प्रेम है वो किया जाता है. आप तैयार हैं अपने त्याग के लिए, आप तैयार हैं बलिदान के लिए, आप तैयार हैं बिना किसी अपेक्षा के दूसरे की सहायता के लिए. सहायता भी नहीं कहेंगे आप उसे, अपने आप को डेडिकेट करने के लिए. देश के सैनिक मातृभूमि से प्यार करते हैं. सिर्फ सैलरी से नहीं हो सकता गुजारा. सैलरी दे कैन अर्न बेटर देन हियर. रिसेंटली वी फाइंड अ नंबर ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु फाइट though they can hide, but it is love. अगर एक बेटी अपने पिता की इज्जत से प्यार करती है तो वो कभी भी एक बिना एहसास कराए अपने पेरेंट्स को, और उसके पेरेंट्स को भी एहसास होगा कि व्हाट द एज ऑफ देयर डॉटर एंड व्हाट काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट देयर शुड बी प्रोवाइडेड. प्रारंभिक काल से ही शादी विवाह का रिवाज हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के सभी देशों में रहा है. और ये प्रेम की वजह से नहीं, ये सिर्फ हमारी शारीरिक, हमारी इमोशनल, हमारी सांसारिक और सामाजिक नीड्स के लिए भी है. और वहाँ पर प्रेम हो जाता है. कब हो जाता है? कब करते हैं वो एक दूसरे से प्रेम? जब वो एक दूसरे के साथ अपनी कस्में, अपनी रस्में, अपने समर्थन, अपने समर्पण को याद रखते हैं. बहुत बार टीनेजर्स का एक क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन, बट दे फील दैट इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, कि दे शुड यूज सोशल साइट्स और नो. माय डियर फ्रेंड्स, जॉन्डिस आइज लुक एवरीथिंग पेल. जैसे कलर का चश्मा आप पहनेंगे दुनिया वैसी नज़र आएगी आपको. आपने काला चश्मा पहन रखा है तो गोरी चीज़ें भी काली नज़र आती हैं.
इट मीन्स अगर आपको लगा सोशल साइट्स पर कुछ गलत है तो आपका हाथ वह रुकेगा ही नहीं, वो स्क्रॉल करेगा। आप गलत किसी, व्हाट इज रॉन्ग इन द वर्ल्ड? मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये मोबाइल में जब आप अपने वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि आपके हाथ में क्या है, न मेरे आसपास का आपको पता क्या है। अब आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जितना मैं दिख रहा हूं इट इज ओनली एग्जिस्ट इन माई हाउस। नो, नॉट एट ऑल। If you are unable to see what is exist in my house, it means, it doesn't mean that you there is nothing. It means your knowledge is only up to this one. जितना आपको दिख रहा है उतना सच है। हम जितना दिखता है उतना सच मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर हम जितना नहीं दिख रहा है अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को, अपने रेस्पेक्टेड पीपल के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं, हो सकता है कि उनके कहने का, उनके प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो, तो भी हम ये जान सकते हैं कि दुनिया क्या है। चाणक्य ने लिखा था कि अगर मनुष्य खुद अनुभव से सीखना चाहता है तो उसके कई उम्र, कई जन्म थोड़े बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये लाइफ एक्सपीरियंस की नहीं, सिर्फ कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करने की भी है और एक्सेप्ट करने की भी है। आई can't believe even in the modern era which is present now, hardly 0.1% love marriages are getting success. Reason? They get attract towards each other. कितने लव जिहाद, दूसरे जिहाद, क्या क्या कलेश दुनिया में चला हुआ है। इट इज़ नॉट लव। प्रेम वास्तव में एक त्याग, तपस्या, समर्पण और एक सम्मान है, पूजा है। रियली मोस्ट ऑफ सेंट्स गेट फाइंड देमसेल्व्स टोटली डिटैच्ड विद द वर्ल्डली थिंग्स। मैटेरियलिस्टिक थिंग डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस इन देयर लाइफ। भौतिकवाद का उनके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं होता। वो परमेश्वर से प्रेम है। एक प्रेम किसी सीमित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। बट मॉडर्न चिल्ड्रन, modern youth, the people who call themselves modern, say they love. The meaning of their love is lost of valuable and important emotions at all. Emotions for their parents, emotions for society, emotions for their God. It is not love. It cannot be love. My dear friends, at last, though I know very well, I can write a number of books over this issue, this topic. It is so wide topic. But just in this video, I would like to appeal to my teenagers, especially, whenever they feel they have a love, what they call love, they can check if they remember the values of their parents, if they remember the respect of their parents, if they remember the expectations of their parents. So many videos I saw, I watched on the social sites. A girl rejected a boy. In a Hindi movie also, धड़कन, I remember, सुनील सेठी से एक लड़की, उसमें जो एक्ट्रेस होती है प्रेम करती है, उसके फादर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जब उसके फादर उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो वो लड़की उसे कहती है कि प्लीज़ सॉरी। सो सिंपली, क्यों? वो कहता क्यों, तुम तो बेवफा हो। उसने कहा कि तुमसे पहले, तुमसे वादा करने से पहले मेरे जन्म पर मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था कि अपने कुल, अपने खानदान, अपने क्लेम की इज्जत के लिए पहले मैं उनको प्रीफरेंस दूंगी। इट इज़ लव। यू कांट से इट इज़ नॉट लव। इट इज़ नॉट डिसलॉयलिटी, इट इज़ लव। प्रेम प्रसंग सहित हमेशा चरितार्थ होता है। कण्व मुनि ने, एक और मेरे दिमाग में प्रश्न आया, एक आज ही मैंने एक क्वेश्चन मिला कि क्या जब तक हमें समझ आता है जब तक तो सर कुछ गलतियां हो चुकी होती हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, हाउ डू यू रेक्टिफाई? तो उसका सीधा सा उत्तर, कण्व मुनि को शूलों पर चढ़ा दिया गया था एक राजा के द्वारा, केवल इसलिए कि उसके कुटिया में छिपा हुआ चोरी का धन मिला जो राजा के दरबार से चोरी हुई।
और वो ऋषि उस समय तपस्या पर थे, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। वो कुछ दिन बाद वहाँ तड़फ कर मर जाते हैं, पर जब वो मरते हैं तो धर्मराज के पास जाते हैं, पूछते हैं कि व्हाट डिड आई कमिट सो सीवियर सिन दैट आई गॉट दिस पनिशमेंट। ये सज़ा मुझे किस बात की मिली कि मुझे इतने दिन तक सूली पर लटकाए रखा जबकि मैं तपस्या में था। तो धर्मराज कहते हैं कि आपने ना बचपन में एक चिड़िया मारी थी, और चिड़िया इतने दिन तक कांटों पर पड़कर मरी थी, इसलिए आपको ये दंड मिला। धर्मराज को श्राप दिया था कर्ण मुनि ने कि आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा, फिर एहसास करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, महाभारत में जो विदुर थे वो धर्मराज थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी धर्म को झेलने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए यातनाएं झेली। प्रेम यातना भी देता है, क्योंकि ये तपस्या है, ये त्याग है। उस यातना में अगर आप अपने आप को खो देते हैं, उसे आप बेवफाई का नाम देते हैं, उसे धोखेबाजी का नाम देते हैं, तो आप प्रेम की ABCD भी नहीं जानते। प्लीज़, अभी कोई देर नहीं हुई। अगर आपको आज समझ आ रहा है कि आप बचपन में आपसे जो गलती हुई वो गलत है, आपको अपने माँ बाप की इज्जत, अपने समाज की इज्जत, अपने समुदाय की इज्जत, कुछ लोग आधुनिक परिभाषाओं में ये कहते हैं कि हम दूसरों के लिए क्यों जिए। अरे आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे तो आप जी किसके लिए रहे? फिर आप कैसे अपेक्षा करें कि आपको लोग इज्जत देंगे जब आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे, आप किसी के लिए नहीं जी रहे, आप किसी के लिए त्याग नहीं कर रहे। आपके लिए कौन त्याग करेगा? डॉक्टर क्यों आपको सर्व करेगा? टीचर क्यों आपको टीच करेगा? सोल्जर क्यों आपको सेव करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोगों की एक राजनीति होती है, अपने आप का TRP बढ़ाने के लिए एक बकवास की होती है। प्रेम, प्रिय साथियों, परमेश्वर की आराधना है, और वो परमेश्वर की आराधना नहीं, आज मैं शिव को पूजता हूँ, कल मोहन बाबा को पूजता हूँ, कल तीसरे बाबा को पूजता हूँ। ये अटूट विश्वास है। ये ऐसा विश्वास जो सिर्फ ये साक्षात रूप से मानता है कि परम शक्ति है जो मुझे सांस दे रही है, और मुझे सांस देने वाले मेरे माँ बाप, इसलिए मेरे लिए सर्वोपरि मेरे माँ बाप। और जिसके लिए अपने माँ बाप की इज्जत नहीं, जिसके लिए अपने माँ बाप के सपनों की वैल्यू नहीं, वो शायद समाज में कहीं स्वस्थ और सुरक्षित और खुशी ही शायद ही रह पाता हो, क्योंकि हमने नहीं देखा कि भगवान शिव को त्रिनेत्र रूप में, पर फील किया और जाना तो अपने माँ बाप के थ्रू, उन माँ बाप के थ्रू जिन्होंने शिक्षा समाज से ली, उस समाज के थ्रू इनडायरेक्टली। माय डियर फ्रेंड्स, though I know and I told you that I can speak a complete day, I can get tired, but words will not be ended. At last I would like to say, please care for those who brought you in the world. Don't be in the vicious circle of this attraction. It is not attraction. It is not love. Love leads you over the worst manner, worst situation without feeling any kind of the pain. बिना किसी एहसास के, कष्ट के, बिना किसी दुख के एहसास के, जिस काम को आप हंसते हंसते बड़े सुखद रूप से, मैं अपनी माँ की सेवा करने में नहीं थकूंगा, मैं समाज की सेवा करने में नहीं थकूंगा इनडायरेक्टली। पर अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं, आपको 4 दिन लगातार पनीर खिला दिया जाए, 5वें दिन आप पनीर से उब जाएंगे। सेम कंडीशन वी हैव हियर। आज कोई सुंदर वैश्य शरीर, सुंदर आकृति देखी और हम तुम्हारे हो लिए। इट इज़ नॉट लव माई चिल्ड्रन, it is just an attraction. So please, at last I would like to say, especially to the teenager, that whenever they find going astray, whenever they find any confusion in moving the right direction, they must think what their parents feel for them. They must not have to think that what their religion, what their touchability, what their caste, what the European, American, Indian, other culture tells them. मैं नहीं मानता किसी भी संस्कृति और संस्कृति के भाषण वक्ताओं को। मैं ये मानता हूँ कि मेरी एक माँ है और मेरे एक पिता हैं। उन्होंने मुझे अपने किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया। उनके नाम को ऊंची शिखर तक पहुँचाना, उनकी ख्याति को लोगों की नज़र में सम्मानजनक बनाना, ये मेरा परम कर्तव्य है। तो आई होप यू ऑल विल फॉलो द सेम।
and have a nice day. I would welcome your queries, especially on my WhatsApp as well as on email. Have a nice day, friends.